Hi, good evening, everybody. This is Bishwajit Datta, Director, ASCAT Education. This is a very important information. In fact, मैं कल से सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरा गला फॉर द लास्ट 15 days आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक. बड़ी मुश्किल से क्लासेस भी ले रहा था मैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, देन आई विल मेक ए वीडियो. इनफैक्ट आप सभी को पता है that the result of CAT 2024 has been announced, and I'm very happy to announce this very important results of the center, the regular classroom program which the students have been studying for a complete 1 year long format, and they have successfully come out with lot of dedication and efforts. तो आपको मेरे पीछे दो बच्चों के फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे. उसमें आपको इस तरफ दिख रहा है आदित्य वर्धन शर्मा, 98.98 परसेंटाइल. 1 year प्रोग्राम के बच्चे हैं, क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे हैं, और हार्डवर्क डेडिकेशन जिसके बगैर कोई काम हो नहीं सकता, उसके प्योर एग्जाम्पल्स है. इनफैक्ट ही इज द सिटी टॉपर, भोपाल सिटी टॉपर, 98.98. Among all the people, among all the centers, this is the privilege, and I'm very proud to say that the topper belongs to ASCAT this year of the city. मेरे लेफ्ट तरफ आप देख रहे हैं 96.01 साकर इंदौरकर, another student who has traveled a milestone. मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि कहां से कहां तक आप जा सकते हो, कितने हम्बल स्टार्ट करके आप एक एक्सेलेंट स्कोर तक जा सकते हो. This is the example of that. In fact, for the last quite a number of days, you must be finding me saying lot of things about normalization, about the scaling procedure of the IIMs. Can you believe he had a score of 99, लेकिन स्केलिंग होने के बाद वो 94 पॉइंट समथिंग पे चला गया. पता है आपको दर्द होता है जब आपको लगता है ना कि यार मैंने एफर्ट लगा करके इतने बड़े स्कोर लाया है, और उसके बाद मेरे 4-5 नंबर कट जाता है. 5 नंबर आदित्य के कट गए. स्केलिंग में करने के बाद ही 95 नंबर 94 पॉइंट समथिंग में आया. विद दैट ही हैड ए स्कोर ऑफ 98.98 परसेंटाइल, विच इज नो लेस देन 99 परसेंटाइल. तो ये जो एफर्ट है, दिस एफर्ट कम्स विथ प्रैक्टिस, डेडिकेशन, एंड एक ऐसी सोच जिसको लेके आप घर से निकलते हो रोज और उसको आप 1 साल जीते हो. टू लिव ए लाइफ ऑफ सच pressure, to live a life of that kind of atmosphere is very difficult task, because you do not know what is going to come at the end of the preparation. ऐसा नहीं है that all the people who have not made to that milestone, they have not worked very hard. But this exam is just like that. It is a very competitive format exam. क्या होगा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम होता है कि क्या होने वाला है. 3 सेक्शन, 40-40 मिनट के 3 सेक्शन में आपके माइंड को अलग अलग तरीके से ओरिएंट करके आप पेपर लिखते हो, और उस जगह पर आप कैसे बिहेव करते हो, इट ऑल दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. तो उस समय सही होना बहुत जरूरी है. विद दैट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सेंटर, एंड आई कंग्रेचुलेट द स्टूडेंट्स आदित्य वर्धन शर्मा एंड साकर इंदौरकर राइट नाउ. In fact, we have other students also who have scored some good percentile from 90 plus onwards. तो आज मैं आपके सामने मेरे ये दोनों स्टूडेंट्स आदित्य वर्धन शर्मा और साकर इंदौरकर, दोनों को एक एक करके आपके सामने लाना चाहता हूं. आई वॉन्ट देम टू टॉक अबाउट देयर जर्नी, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है. और आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स इन फैक्ट हु हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर द होल ईयर, and the parents of these students and the students themselves. So everybody, let's welcome Aditya Vardhan Sharma. Please Aditya. So this is Aditya. मैं चाहता हूँ आदित्य आपसे बात करेंगे. Thank you so much. God bless you. Bye bye. So hello everyone. As sir has mentioned, I appeared for CAT 2024 and I was able to score 98.98 percentile. In terms of strategy and what one should be doing, I think one should always work with one's strengths. जैसे मेरा verbal section काफ़ी अच्छा रहा है,
I also come from a non-engineering background. So obviously verbal has been my forte as compared to quant, which is not to say कि quant में काम किए बिना आपका selection हो सकता है. Obviously you will need to clear sectional cutoffs and other such. And quant can also be a very valuable asset if you work on it. But the way I approached the exam was कि आधा exam जो है ये verbal का है, because verbal as a section it is possible to complete all 23-24 questions. For example, I attempted 23 questions this year and I was able to get 18 of them right. And I believe my score in verbal was 50. Normalization के बाद जो भी एक सवा नंबर उसमें कम हुआ था, but other than that my score was 50, which out of my total score is almost 50%. And whereas if you look at a section like reasoning and a section like quant, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दो सेक्शंस इन 40 minutes. आप बहुत अच्छे भी हो गए उसमें, देन एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल ह्यूमन, राइट? सो योर अटेम्प्ट इज मे बी नॉट गोना बी मोर देन 15-16 questions. I think Sakar will also talk about it. I think he has a very high quant score this year. I think he's in the high 99s, around 99.6, 99.7 in quant. So he will be able to explain this to you better. But there are upper limits to how well you can do in reasoning and quant, and I don't think those upper limits exist in verbal. If you're very good at it, I think it is entirely within the realm of possibility to score 50, 55, even 60. तो मुझे लगता है कि आपको अपनी strategy उस हिसाब से बनानी चाहिए and always work with your strengths. That said, obviously you will have to do things in quant. If you've not been great, let's say like me, you're a non-engineer और आपका maths बहुत पीछे छूटा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके साथ काम नहीं कर सकते. यू नो, यू कैन पिक आउट थिंग्स एंड से कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम नॉट ग्रेट एट अलजेब्रा, बट इट कांट बी दैट यू आर बैड एट एवरीथिंग इन अलजेब्रा, राइट? तो जैसे मैंने पिक कर लिया था कि डिटर्मिनेंट पर क्वेश्चन आएगा या रूट्स पर क्वेश्चन आएगा या मिनिमा मैक्सिमा पर क्वेश्चन आएगा, तो ये मैं करूंगा. इसके बाद तो अलजेब्रा इज वेरी वास्ट, बट टिपिकली आप देखेंगे कि कैट में इन चीज़ों पर आ जाता है सवाल. सो यू शुड आइडेंटिफाई कि इवन विद इन माई वीक एरियाज are there things that I can work on. You know, it can't be that you're bad at everything in arithmetic. Maybe percentage makes sense to you, maybe ratio proportion makes sense to you, maybe speed time and distance makes sense to you. So you can't be bad at entire chunks. You have to identify some of those areas and work with those. The great thing is that it is such a difficult exam कि कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा. तो अगर आप अपने strengths पे काम करते हुए I think इसमें आगे बढ़ेंगे, then surely you can achieve a very high percentile. In terms of strategy, I think ऐसा कुछ नहीं है कि at least at our center what we were doing is that we would look at a bunch of resources. I think only in 2024 when things are so accessible and the internet is so vast and so wide, तो resources की कोई कमी नहीं है और सब resources से आप कुछ अच्छा ले सकते हैं. And I think that has been our approach here as well कि ठीक है, जो भी किताब से हमें अगर 4 अच्छे सवाल भी मिलते हैं, we will look at those. And I think that should be the approach. One shouldn't approach this with a sense of arrogance कि नहीं मेरा material या मेरा approach या जो भी है. At the end of the day, this is a skill-based exam. Verbal, reasoning, quant, these are skills. There's no core base of knowledge, which, you know, there's not a body of knowledge as such that exists for this exam. It's a skill-based exam, and जहाँ से भी you can hone your skills, I think you should try to do that. And obviously, like any other exam in the world, consistency is key. If you keep at it till the end, consistent mocks and consistent practice, I don't see a reason why one would not do well. That's about it from me. I'll leave the floor to Sakar. हेलो, गुड इवनिंग. मेरा नाम साकर इंदौरकर है. मैंने इस साल कैट अटैम्प्ट किया और मेरे 96.01 परसेंटाइल आए. तो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था क्योंकि मैंने एक साल पूरी तैयारी करी अच्छे से. और मेरे साथ दरअसल सीन ये था कि मैं इंजीनियर हूँ तो मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ है, तो बट इंग्लिश मेरा वीक था. तो मैंने इंग्लिश पे काम किया एक साल अच्छे से. और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप मॉक्स देते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मॉक्स देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने टोटल 31 मॉक्स लिखे थे. मतलब जैसे नवंबर में एग्ज़ाम था तो मैंने लास्ट के जो 2-3 महीने थे, सितंबर से लेकर नवंबर तक, मैंने 31 मॉक्स लिखे थे. और उससे मुझे फ़ायदा ये मिला कि मैं एक फ़्लो में आ गया था. जब मैं एक्चुअल एग्ज़ाम देने गया तो मुझे यही लग रहा था कि मैं मॉक लिख रहा हूँ, क्योंकि
जैसा मैंने कहा कि आप फ्लो में आ जाते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ये रहेंगी कि जैसे मैंने इंग्लिश में तो हालांकि मेरी वो वीकनेस थी, तो मैंने सबसे ज़्यादा उस पर काम किया। मैंने नॉवल वगैरह पढ़ी, न्यूज़पेपर वगैरह थोड़े बहुत पढ़े, बेसिकली अपनी रीडिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करी ताकि इंग्लिश में सुधार आए। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अलग अलग वैरायटी के, मतलब जैसे लॉजिकल रीजनिंग में अलग अलग वैरायटी के सेट्स होते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करना, हर एक सेट में कुछ ना कुछ ट्रिक रहती है, वो सब पता करना, वो सब आइडेंटिफाई करना। और रही बात कॉन्ट्स की, तो कॉन्ट्स में तो मैंने मतलब पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया था, क्योंकि मुझे मतलब ऑलमोस्ट पूरी नॉलेज थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा मैंने देखा जनरली कि लोग अलजेब्रा से थोड़ा दूर भागते हैं, अलजेब्रा थोड़ा कम करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि पूरा टॉपिक सब कुछ कवर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि आप जो टॉपिक छोड़ रहे हो उसमें से आसान सवाल आ जाए, क्योंकि आप यू नेवर नो कि पेपर कैसा आएगा। इसलिए मैंने पूरा पेपर किया था, आई मीन पूरा सिलेबस कवर किया था। और एक और चीज़ ये कि ऑल्दो इस साल का पेपर काफ़ी इजी आया था, मैथ्स भी इजी थी, अलजेब्रा के क्वेश्चंस कम थे, अरिथमेटिक थोड़ी ज़्यादा थी, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा थी, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ी ज़्यादा थी। इसलिए बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि एंड तक टिके रहेंगे तो हो जाता है काम, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। और मेन चीज़ ये है कि एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा काम रहना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप प्रेशर में आ जाते तो फिर आती हुई चीज़ भी आप नहीं कर पाते। थोड़ा सा अपने आप को, जो 2 घंटे जिस टाइम पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस टाइम पे काम रहना ज़रूरी है। और आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है वो आप उस स्ट्रेटजी पे ही आप मॉक्स देते चले। जैसे मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि इंग्लिश में मैं जैसे 4 पैसेजेस आते हैं, तो 4 में से मैं करीब 3 पैसेजेस कर लूँगा और बाकी मैं पूरा वीए करूँगा। कोई एक पैसेज होगा जो टफ़ होगा, जो मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि हाँ यार ये पैसेज टफ़ है, ये मुझसे नहीं बनेगा, तो वो पैसेज मैं छोड़ दूंगा। बच्चों को जो 3 पैसेज होंगे जो थोड़े करने लायक होंगे, जिनको देख के लगेगा कि हाँ ये थोड़े समझ में आ रहे हैं, वो पैसेज करूँगा। क्योंकि ऑफकोर्स 40 मिनट्स में मैं पूरा नहीं कर सकता था इंग्लिश, ये तो मेरे को पता था। रीजनिंग में ये था कि जितने भी सेट्स हैं, 4-5 जितने भी सेट है, इस बार 5 सेट आ गए थे, सबसे पहले हर एक सेट को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि हाँ ये जो 4-5 जितने भी सेट है इनमें से सबसे आसान सेट कौन सा है। जो सबसे आसान सेट होगा उसको सबसे पहले करूँगा। उसके बाद उसको करने के बाद जो मेरे को लगेगा कि हाँ ये तो हो गया, अब इसके बाद जो सबसे आसान सेट बचा वो ये है, तो मैं उस पर टारगेट करूँगा। ऐसे करके 40 मिनट्स में जितना हो जाए उतना। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में सबसे सही चीज़ ये होती है कि सवाल पढ़ के समझ में आ जाता है कि हाँ इस टॉपिक से हमने किया है कि नहीं किया है। तो सवाल पढ़ते से अगर समझ में आ गया कि क्या करना है और जो करना है वो जल्दी हो गया, 2-3 मिनट में हो गया या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट में हो गया, तो वो क्वेश्चन उठा लो। अगर सवाल पढ़ के बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा कि कहाँ से है क्या है, तो फिर छोड़ दो। तो यही स्ट्रेटजी लगाई थी मैंने। और इंग्लिश में मैंने किए थे करीब 16 सवाल किए थे, जिसमें से 8 सही रहे, बचे 8 गलत रहे। रीजनिंग में करीब 8 सही थे, 1 गलत था। और मैथ्स में तो जितना किया था पूरा 12 का 12 पूरे सही थे। तो ये स्ट्रेटजी लगाई मैंने, और मैथ्स की वजह से मैं मतलब बेसिकली हाई परसेंटाइल ला पाया हूँ। थैंक यू। सो आई थिंक आपने अभी देखा, दोनों बच्चों को, दोनों स्टूडेंट्स ने अपने अपना एक्सपीरियंस बताया। आई होप दिस विल हेल्प अस टू cherish the moment of success in our life, and also at the same time it will help us to enlighten our understanding with respect to the exam called CAT. साकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन बात कही, जो मुझे लगता है कि मुझे दोहरानी चाहिए, एंड दैट इज कि ये लाइफ एक टेस्ट मैच है, ये एग्जाम एक टेस्ट मैच है। क्योंकि जब आप 6 महीना 7 महीना लेकर आप तैयारी करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप कंप्लेसेंट हो जाते हो, आपको लगता है मैं थक गया हूँ, नाउ आई नीड टू गो फॉर सम रेस्ट। आपके आस पड़ोस वाले, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं भाई तू कितना लगा रहेगा यार, कितना टाइम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, तो कई बार बच्चे क्विट कर देते हैं। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ डू नॉट क्विट। आप आखिरी तक लगे रहो, एक टेस्ट मैच की तरह। टेस्ट मैच भी आखिरी में जाके एंड हो जाता है, और यदि आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो रिजल्ट्स आपके फेवर में आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। That is a very different kind of examinations. It tests your mind every second. In fact, आप जानते हो जो 40 मिनट आपका घड़ी जो आप पेपर में लिखते वक्त एक एक सेक्शन में बिताते हो, उसका एक एक सेकंड आपको टेस्ट करता है। इट इज नॉट ए टेस्ट ऑफ जस्ट 40 मिनट्स, इट्स ए टेस्ट ऑफ 1 सेकेंड इंटू मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड और 60 इंटू 40, तो 6 4 24, 2400 सेकेंड्स एक सेक्शन, फिर 2400 सेकेंड सेक्शन 2400 सेकेंड्स, थर्ड सेक्शन, और आपको उतना ही क्वांटिटी के साथ अपने आप को चलाना पड़ता है। मतलब यू नीड टू लिव विद इन दोस
और 2400 सेकेंड्स इंटू 3, तब जाके ये रिजल्ट देता है। तो इतना छोटा नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए लास्ट तक यदि आप टिके रहते हो, बने रहते हो, तो मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। एंड दिस स्टूडेंट्स हैव डन इट, आई थिंक यू टू कैन डू इट। सो आई मीन दिस इज माई कॉल टू ऑल द पीपल। आपको ये सोचना है, आपको ये सोचने में मजबूर होना है दैट हाउ ए स्मॉल सेंटर with that much amount of dedication, working all the days, 7 days a week, in fact, sometimes 6 days a week, 7 days a week, working regularly, sparing time with the students. कई बार हम क्लास में क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करते, वी जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि यदि ये कॉन्सेप्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन, तो गिव मी 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसको यदि आप याद रख पाते हो, यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस दैट विल कम ऑन लीनियर इक्वेशंस। तो कई बार आप छोटे छोटे टॉपिक्स को, बड़े टॉपिक्स को आप छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके आप उसको एक जीके के फॉर्मेट में, जनरल नॉलेज के फॉर्मेट में आप तैयार करते हो, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट थिंग्स बिकम सो इजी। इनफैक्ट समबडी हु हैज ए फियर फॉर मैथमेटिक्स स्टार्ट लर्निंग एंड लविंग मैथमेटिक्स। एंड कई बार ऐसे होता है स्टूडेंट्स अपने इनपुट्स, अपने एक्सपीरियंसेस देते हैं, एंड वी डू नॉट यूज ए पेन इन द क्लास। बच्चे आपस में आर्ग्यू करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एंड दे कम आउट विद अ वेरी डिलाइटफुल, मीनिंगफुल, रीजनेबल रिजल्ट्स, और वो उनको याद रह जाते हैं और पेपर में वही काम करता है। तो आपको बने रहना है इस गेम में, लास्ट तक छोड़ना नहीं है। यदि आपने इसको हाथ में उठाया है तो अब आपको इसके साथ जस्टिस करना है। लास्ट में एंड रिजल्ट जो भी हो, फिर आपके 99.99 परसेंटाइल आए या 92 परसेंटाइल आए, 89 परसेंटाइल आए, जो भी आए वो आप ही का होगा। लेकिन within this 6 to 9 months of time, I believe anybody who is devoting himself or herself completely, मेरे को इस बात को बोलने में जरा सी भी शंका नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं होगे। मैं सबको स्टार्टिंग से कह रहा था जो लास्ट तक टिकेगा वो सिलेक्ट होगा। मैं आपको इतनी ऑनेस्टी से इस बात को कह रहा हूं, हमारे सेंटर में आखिरी तक जितने बच्चे रुके, आखिरी तक, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू विद दिस स्टेटमेंट दैट ऑल ऑफ देम हैज कमिंग आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। मतलब उसमें ऐसा कोई भी एक्सीडेंटल केस नहीं हुआ कि अरे यार ये बहुत अच्छा कर रहा था, मॉक में अच्छा कर रहा था, अभी सेलेक्ट नहीं हो पाया, इसके परसेंटाइल 90+ नहीं बन पाए, ऐसा किसी का भी नहीं हुआ। मैं पर्टिकुलरली उनके लिए बात कर रहा हूं जो लास्ट तक रुके थे। लास्ट मॉक देने के बाद दे सेड कि सर आज हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, कल का रेस्ट और परसों रियल कैट एग्जाम्स, एंड देन गेम इज डन। तो जो इस मायने के साथ पेपर को प्रिपेयर कर रहे थे, दे हैव कम आउट कंप्लीटली सक्सेसफुली इन दिस एग्जाम। तो मैं आप सभी को कॉल करता हूं, दिस इज माय कॉल टू पीपल जिनको लगता है कि हमारा फंडामेंटल्स वीक है, क्योंकि इस पूरे एग्जाम का गेम ही फंडामेंटल्स के ऊपर है। आपको हजारों लाखों सवाल नहीं करना है, ओनली फंडामेंटल्स। इफ यू आर गुड एट फंडामेंटल्स, इफ यू कैन प्रिपेयर योर फंडामेंटल्स, थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी। तो अपने फंडामेंटल्स पे जिसको काम करना है, जिसको लगता है वी डू नॉट वांट ए बिग नेम बट वी वांट समबडी टू बी हेल्पिंग अस every time when we find out a problem in a question, whether it is English or logical reasoning or DI or mathematics, I have that person in the center waiting from morning till evening every day with the same spirit, with the same dedication and with the same energy level, meeting the faculty right in the morning at 7 o'clock or 8 o'clock and meeting the same faculty at 6 o'clock, 7 o'clock in the evening with the same energy level. Somebody is waiting for you. I think आपकी आधी लड़ाई वही खत्म हो जाती है, उसके बाद केवल आपको कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट देखना होता है। तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं यार आई नीड समबडी टू हेल्प मी आउट, वी आर हियर, आप हमें अप्रोच करें। और एक सेंटर जहां से इस साल टॉपर्स, सिटी के टॉपर्स निकल रहे हैं, एंड इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है, जो मेहनत करेगा वो निकलेगा। 100 की एक बात है, और वो कहते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे, और लेवल निकलेंगे उसी के जो आखिरी तक टिका रहेगा। हमारा सहकार ये बोलता है कि सर लेवल तो सबके निकलेंगे, और निकलेंगे उसी के जो आखिरी तक टिका रहेगा। मैं आपको फिर बोलता हूँ, कम एंड सी द लेवल, टेस्ट योर लेवल एंड विन द रेस। चलिए 2025 कैट की तैयारी शुरू करते हैं, और आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वजीत दत्ता, डायरेक्टर एस कैट एजुकेशन, आप सभी को वेलकम करता हूँ। और किसी भी प्रकार की किसी भी बात को लेकर with respect to the exam called CAT, you are always welcome to discuss with us. Thank you so much. May God bless you. See you at some other time with some other topic, with some
sort of discussions that is again going to be very intellectual and will help you to understand, to make you think on any subject that is very important for us, for an examination point of view, for a societal point of view. Thank you so much. May God bless you. Bye-bye.